everyone, hope you are doing well. As the title suggests, this reading is about your present karmas. What karma are you performing in the present? क्या प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, और अगर आप कोई मुश्किल में हो तो उसका सल्यूशन क्या हो सकता है, इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है। एंड दिस इज़ अ रीडिंग बेस्ड ऑन योर मून साइन। आपका मून जो है कौन से साइन में प्लेस्ड है इन योर वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप, उस बेसिस पर ये रीडिंग है। अगर आपको नहीं पता कि आपका मून कौन से साइन में प्लेस्ड है इन योर वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप, देन यू कैन ऑल्सो इंटुइटिवली चूज फ्रॉम द कार्ड्स, जो कि उसका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में होगा। और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मेरी बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अभी जो है मैं इसका स्क्रीनशॉट जो कार्ड्स का है वो भी लगा दूंगी, बट पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा कार्ड कौन सी पाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ग्रे कार्ड है, लर्न टू स्कैन योर बॉडी, नंबर 29, इट विल बी द पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 इज ऑफ सात्विक साइंस, मून इन सात्विक साइंस, यानी कि मून इन द साइंस लाइक कैंसर, लियो, सेजिटेरियस या पाइसिस। Alright, so you have to choose the pile number 1 if your moon is placed in these signs. Pile number 2 is of Ogburn, ground yourself, number 11. If your moon is placed in the Rajasic signs like Aries, Taurus, Gemini or Libra, then you have to choose pile number 2. If your moon is present in the Tamasic signs like Virgo, Scorpio, Capricorn or Aquarius, then you have to choose pile number 3, the Jade, टेक एक्शन, नंबर 32। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी लगा देती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम। ऑलराइट, Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the grey card, learn to scan your body, number 29. आपका जो मून है वो आपके सात्विक साइन में प्लेस्ड है, यानी कि आपका जो मून है वो आपके कैंसर, लियो, सेजिटेरियस या पाइसिस साइन में प्लेस्ड है। Why these signs are sattvic? Because these are ruled by sun, moon and Jupiter. These are the sattvic grahas. Without sun and moon लाइफ होती ना, और जुपिटर के बिना भी लाइफ नहीं होती, क्योंकि जुपिटर हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है मीटेरॉइड से। अगर जुपिटर नहीं होता तो हमारी अर्थ कब की डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। सो द साइन ऑफ कैंसर इज रूल्ड बाय मून एंड मून रिप्रेजेंट्स मदर। सो विदाउट मदर हम यहाँ नहीं होते। तो साइन ऑफ कैंसर रिप्रेजेंट्स नरिशमेंट, फूड, इट रिप्रेजेंट्स comfort, it represents comfort of our homeland. And if you have a malefic place in the 4th house of your chart, we definitely see that you are not happy in your home. You feel tension and stress at your home. You really will go to foreign distant land as well, or at least a distant place from your homeland, especially Rahu is placed in the 4th house of homeland. And the sign of Cancer does represents the 4th house, because even if in your chart the 4th house is being ruled by, let's say, Capricorn or let's say Aquarius, still there is the ghost of Cancer in the 4th house for sure. Then if we have to talk something about the sign of Leo, sign of Leo is ruled by Sun. Sun is our father. Without father हम यहाँ नहीं होते. The sign of Leo represents our sports activities, or I should say नेशनल स्पोर्ट्स खेलना, मतलब नेशन के लिए स्पोर्ट्स खेलना। एक होता है गली क्रिकेट, एक होता है नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स खेलना। तो वो जो गली क्रिकेट है, फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलना, कोई और स्पोर्ट एक्टिविटी करना, दैट इज़ सीन फ्रॉम द साइन ऑफ जेमिनाई। वेयरएज नेशन के लिए, एक अपने कंट्री के लिए स्पोर्ट्स खेलना, दैट इज़ सीन फ्रॉम द साइन ऑफ Leo or the 5th house. And 5th house also represents Purva, Punya, Bhava. Purva means pehle, Punya means good deeds, and Bhava means house. So good deeds of your past lives are also seen from the 5th house of your chart, which is the natural Leo sign. And we do see that 5th house represents, or the sign of Leo represents your children. And 5th house represents love, romance, creativity, because creative emotion is also romance. Then if we have to say something about the sign of Sagittarius represents preacher, teacher, counselor, advisor, because this is a sign which is ruled by Jupiter. Jupiter itself is the teacher, preacher, counselor, advisor, astrologer. And Sagittarius sign represents higher education. It's the also 9th house is also the house, or the sign of Sagittarius also represents the father. Sun represents the father, but the house of father is the 9th house.
And ninth house, or the sign of Sagittarius, also represents education after graduation, your PhDs, masters. It represents religion, religious ceremonies. It represents pilgrimage, travel, long distance travel, travel because of education. Then 12th house, or the sign of Pisces, does represents retirement, exit. It represents DMT experiences. It represents spirituality, because spirituality is also like a natural DMT. When one gets into spirituality, when one does meditation, when one is really connected to the God, he will feel natural DMT. So that's also there. And 12th house does represents bed pleasures, things which are we are doing behind someone's back, or things which are related to occult mysticism as well. And it represents isolation. So that's what sign of Pisces represents. So let's just get started. If your moon is present, let's say in the sign of Cancer, your moon can be placed in Pushya Nakshatra with this. You can be a person who loves food. You can be a foodie here, loves extra ghee, extra cheese, extra butter, and you are a person who nourishes other people. वो अपनापन दूसरे लोगों को आपसे फील होता ही होता है, चाहे आप एक प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में डील करो, स्टिल आपको अपनापन, दूसरे लोग आपसे अपनापन ज़रूर फील करते हैं. यू आर अ पर्सन जो दूसरों को एक कंफर्ट फील कराते हैं. दैट कैन बी सीन हेयर. इफ योर मून इज प्रेजेंट इन द लियो साइन, मून कैन बी इन माघा नक्षत्र. यू कैन बी अ पर्सन who is extremely sexual in nature, because the nakshatra animal of Magha is a rat, especially a male rat is ruling the Magha nakshatra. A male rat even dies during coitus because of the high sexual appetite. So we do see that you have a high sexual appetite. At the same time, Magha is ruled by Ketu. Ketu represents past life, and Magha nakshatra is of ancestors, pitris. You're a person who likes to know about DNA genome, कि क्यों हमारी नोज़ का स्ट्रक्चर ऐसा है, क्यों हमारी आईब्रोज ऐसे बीच में जुड़ जाती है. अगर आपने देखा हो, कुछ लोगों की जो आईब्रोज है वो बीच में जुड़ सकती हैं, जस्ट लाइक वो बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल, राइट. सो उनकी आईब्रोज जुड़ जाती है, बट दूसरे लोगों की शायद नहीं जुड़ती. उनके जीन्स ऐसे हैं. समवन कैन इवन स्टडी दैट. स्टडिंग द जीनोम, स्टडिंग द DNA can also be seen from Magha Nakshatra. You can have interest in these things. You can even go in biotech with this Magha Nakshatra. But just looking at the Moon Nakshatra, we cannot really predict the career. But it does show that one is interested into knowing the ancestry, inheritance, and you will also get inheritance in your life. Ancestral lands आपको यहाँ पर Magha Nakshatra में मिल सकते हैं if your Moon is present in Magha. Even Sun present in Magha can give you ancestral land. And Magha does show that there is that interest in traditions and culture, following the culture, following the tradition of the family. And Magha is a masculine nakshatra as well. So even if you are a female watching this reading and you have your moon in Magha, you are quite a masculine female, very goal oriented, very cut to the point kind of personality. That is also there. If your moon is present in the sign of Sagittarius, your moon can be present in Uttara Ashada Nakshatra. So first of all, you will have teeth issues, especially if the moon in Uttara Ashada is being aspected by Rahu, Ketu, Saturn. So you will have teeth issue here for sure. And you also will have very good writing skills. You can write long text paragraphs, long messages in a text, in a chat basically, and you may write scripts or emails really well. You're very good at writing. That can be seen here. And with Uttarashada, you also become very strategic. Many people do MBA in strategic analysis as well, in strategy, MBA in strategy. You definitely are a person who is very good in strategizing and then doing the work. You're not a person who should be spontaneous. You should strategize first, because then you are going to get more results. Then if your moon is present in the sign of Pisces, especially in the nakshatra of Purva Bhadrapada. Purva Bhadrapada is ruled by Aja Ekapada. So this nakshatra definitely gives you this tendency to know the depth of secrecy as well. Many good astrologers do come out of Purva Bhadrapada nakshatra because they want to know the depth of that subject, want to know the depth of astrology. And you can also be a person who, when get interested into something, you just dive deep into that subject and get that information out. You're also a person who may have interest in UFO, alien theories,
and murder mystery, these kind of things can also be seen that you are interested in these things. So let's just get started. जो आपके present जो है आपका वो कैसा चल रहा है, क्या situations है, present karmas क्या हैं pile number 1 के, present karmas क्या है pile number 1 के. So we have the Knight of Pentacles and we have the Sun card and we have the Page of Cups here. Alright, you want things to be quick in your life for sure. You want things to happen quickly. You want the results quick. आप जो एफर्ट करते हो, अगर 100% एफर्ट करते हो तो आप ये चाहते हो कि आपको 200% रिजल्ट आए. और हर कोई चाहता है, ये बात हर कोई चाहता है. इट्स नॉट जस्ट यू, हर कोई चाहता है. पर यहाँ पर जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि जो आप वो चाहते हो जल्दी होना उस काम का, वो जल्दी शायद ना हो. तो यहाँ थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है. या सन कार्ड भी आए हुए, जो भी आप काम कर रहे हो प्रेजेंट में वो सफल ज़रूर होगा, उसका पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आएगा, चाहे देर से आए पर आएगा ज़रूर. और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर आप में से कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही डे ड्रीम भी कर सकते हो. काश ये होता मेरे पास, काश वो होता मेरे पास. यू आर जस्ट नॉट अप्रिशिएटिंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट. सो आप जो हो थोड़ा जो आपके पास है, जितना भी है उसको अप्रिशिएट करो. और यहाँ पर जिस चीज़ के लिए भी आप जल्दबाजी आपके अंदर मन में चल रही है उसको थोड़ा काम डाउन करो. बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक सैटर्न इज़ द कार का ऑफ डीले बट इट नेवर डिनाइज. तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर होंगी पर थोड़ा देर से होंगी. स्पेशली सन कार्ड भी है और ये सैटर्न का रिप्रेजेंटेशन है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सो इट्स डेफिनेटली शो, एंड इफ़ यू इवन नो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, देन सैटर्न एंड सन आर बोथ बिटर एनिमीज. शनि और सूर्य बिटर एनिमीज हैं, उनको एक साथ रहना पसंद नहीं है. बट एक तरह से few of you can have this sun Saturn conjunction in your chart. So यहाँ पर जो है it can definitely show you may not have the best relationship with your authorities, with your people who are your bosses. You may not have that best relationship. You may even want to have a leadership position, but early in life you may not get that leadership position because of this Saturn. So that is seen here. But थोड़ा यहाँ पर patience की ज़रूरत लग रही है और ये एफर्ट करना पड़ेगा आपको अपने आप से कि पेशेंट मैं रहूं. दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. और पेज ऑफ कप्स शो कर रहा है कि यहाँ थोड़ा अगर आप ब्रेक भी ले लेते हो उस गोल से, क्योंकि आपने अपना एफर्ट कर दिया ऑलरेडी, अब आप वेट करो तो आप कोई और काम भी शुरू कर सकते हो इस टाइम पर. बट यहाँ थोड़ा पेशेंस, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ी पेशेंस की यहाँ पर ज़रूरत है. कुछ और इन्फॉर्मेशन टेरो की तरफ से यहाँ पर पाइल नंबर 1 के लिए. ऑल राइट, वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर. तो यहाँ पर जो पेज ऑफ कप्स है डेफिनेटली शो कर रहा है कि जो भी ये काम है आपको इमोशनली तो ये फुलफिल कर ही रहा था. जब आप एफर्ट भी कर रहे थे इस काम को लेकर, या जो भी आपके एफर्ट्स चल रहे थे इस काम के लिए, वो काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी फ्रूटफुल ही हैं. और यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स सेज 10 रिप्रेजेंट्स द एंड, इट रिप्रेजेंट्स द एग्जिट. अब आपने एफर्ट कर दिया, नाउ इट्स द टाइम टू जस्ट वेट, टू बी पेशेंट. चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी. इट्स नॉट जस्ट, आई एम नॉट गिविंग यू अ पॉजिटिव रीडिंग है, आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज़ व्हाट इट इज़. यहाँ पर ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो दैट्स देयर. यहाँ पर जो है, यहाँ टेरो की तरफ से और गाइडेंस या कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिले सिचुएशन के बारे में, जिस सिचुएशन में पाइल नंबर 1 है, कोई सोल्यूशन. So we have the man holding a coin, we also have the angel of love, we have the cornucopia. तो यहाँ पर भी abundance ही नज़र आ रही है, स्पेशली फाइनेंशियल abundance. जो भी आपने काम करे थे अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में, वो फ्रूटफुल रहेंगे. यू जस्ट नीड टू वेट. और यहाँ पर भी जो मैन होल्डिंग अ कॉइन है, अगर आपको पता हो कि जो एक्वेरियस एंड Capricorn represents our profession, Aquarius is the gains from the profession. Capricorn, Aquarius both are ruled by Saturn. तो यहाँ पर जो है मैन होल्डिंग अ कॉइन, इट्स अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द फाइनेंसेस. दे आर गोना कम टू यू बट दे आर गोना कम अ लिटिल लेट हियर. इट कैन हैपन दैट योर आत्मकार का सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट इज सैटर्न, और योर मून इज प्लेस्ड इन द नक्षत्र ऑफ सैटर्न. यहाँ पर एंजल ऑफ लव भी है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो हो व्हेन यू आर इन और आई शुड से, अगर आपको लगता है कि वो पर्सन आपको पसंद करता है, आपको ये लगता है, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट यू थिंक दैट दिस पर्सन रियली लाइक्स मी, मोस्ट प्रोबेबली दिस पर्सन रियली लाइक्स यू.
इफ़ यू वर कन्फ्यूज्ड कि ये मुझे पसंद करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि मैं करती हूँ, एंड यू आर कन्फ्यूज कि ये करते हैं कि नहीं करते मुझे पसंद, तो येस दिस पर्सन लव्स यू और मे एक्चुअली लाइक यू. लव तो थोड़ा सा दूर की बात हो जाती है, बट येस दिस पर्सन लाइक्स यू. इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू फील अ कनेक्शन विद दैट पर्सन, तो ये वन साइडेड नहीं है, ये बोथ साइडेड है. ये भी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. आपके लिए गाइडेंस क्या है? जो पाइल नंबर 1 है उनके लिए यहाँ पर गाइडेंस क्या है? पाइल नंबर 1 के लिए यहाँ पर गाइडेंस क्या है? ऑल राइट, वी हैव द wise leader. We also have the choosing your path. तो डेफिनेटली यहाँ पर जो वाइज लीडर है, यू आर द बीकन फॉर अदर्स. तो आप जो हो इन फ्यूचर एक बहुत अच्छे लीडर बनोगे. ऐसा हो सकता है आप एक लीडरशिप पोजीशन के लिए जो है तैयारी कर रहे हो, IPS IAS ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हो, ये चीज़ें बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, UPSC क्लियर करना चाहते हो, काफ़ी ये जो एक लीडरशिप पोजीशन चाहते हो. बट इस पोजीशन को मिलने से पहले, मतलब ये वाली पोजीशन जब आपको मिलेगी, इससे पहले आप जो हो मेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर हो जाओगे टू बी अ हम्बल्ड लीडर. एक लीडर होता है जो रौब झाड़ता है, एक लीडर होता है जो दूसरों की एक इमोशंस को समझता है, उनकी सिचुएशन को समझता है. तो आप एक बहुत हम्बल्ड लीडर बनोगे, स्पेशली बिकॉज सैटर्न का इम्पैक्ट इस पाइल में बहुत ज़्यादा, और सन का कार्ड भी यहाँ पर आया हुआ है. एंड सन इज़ द नेचुरल लीडर बिकॉज सन गेट एक्सॉल्टेड इन द एरीज साइन, एंड बिकॉज एरीज इज द फर्स्ट जोडियक साइन, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट हाउस. सन feels exalted in the Aries, but Saturn feels debilitated in the sign of Aries. तो यहाँ पर लीडरशिप लेट आएगी, और जब आप हम्बल हो जाओगे उस पोजीशन के लिए तब आएगी. कई बार एजुकेशन या मार्क्स इतने मैटर नहीं करते जितने आपके मॉरल्स और वैल्यूज़ करते हैं. डू नॉट रियली रन फॉर सक्सेस, फॉलो योर फैक्ट्स, और आई शुड से रिमेंबर योर मॉरल्स, वैल्यूज़ एंड फैक्ट्स, सक्सेस विल बी देयर. और यहाँ पर चूजिंग योर पाथ भी आया हुआ है. ऑल इज पॉसिबल का कार्ड है ये, हर चीज़ पॉसिबल है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास. और यहाँ पर आप अपना पाथ चूज़ कर चुके हो या फिर करने वाले ही हो, और आप वो पाथ चूज़ करोगे जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा देगा. बिकॉज वी हैव द मैन होल्डिंग अ कॉइन. इवन इफ़ यू डू नॉट रियली लाइक दैट थिंग, इवन इफ़ यू लाइक पेंटिंग, इवन इफ़ यू लाइक समथिंग क्रिएटिव, स्टिल यू आर गोना डू समथिंग विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ वेल्थ, लॉट ऑफ इनकम, एंड गिव्स यू अ लीडरशिप पोजिशन. बिकॉज सन is the karka of our ego. So whatever position satisfies your ego, you are going to end up choosing that. Sun is a mild malefic, that's why. So यहाँ पर जो है, you are going to become a great leader, a humbled leader, a leader who understand other people really well. But यहाँ पर delay है, there is delay, but यहाँ पर denial नहीं है, मना नहीं है. थोड़ा delay है पर मना नहीं है कि ये चीज़ नहीं होगी. नो, यस ये होगी, बट थोड़ा सा यहाँ पर डिले नज़र आ रहा है फॉर यू, पाइल नंबर 1. ऑलराइट डियर, सो दिस वाज द रीडिंग. आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. Hello pile number 2, so this is your reading. You chose the Ogburn card which says ground yourself, number 11, and यहाँ पर आपका जो मून है, it is placed in the Rajasic signs like Aries, Taurus, Gemini and Libra. Why these signs are Rajasic? Because Aries represents our physical body, it represents our ego as well. It's the region of head. आपका जो दिमाग है उसको भी represent करता है Aries. Because let's say your sun is placed in Aries sign, it definitely show that with, if I say Mars also, not just sun, but if sun and Mars conjunction is happening in the Aries sign, we definitely see that you are a person who may have natural migraines and will have eye issues, and a weak eyes eye issue will be there with this sun Mars in the first house, especially in the ascendant. So we see that you can even get quite irritated easily, and if somebody said something against your ego, that anger also comes out. So that can be seen. But yes, Aries sign is the sign which represents I want everything first. मुझे सबसे पहले चीज़ मिलनी चाहिए. एरीज, टॉरस, जेमिनी, लीब्रा, ये सारे साइंस राजसिक इसीलिए भी हैं क्योंकि ये सारे भूमंडला पर चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं और आपको एंजॉय करवाना चाहते हैं. सात्विक साइंस आर ऑल अबाउट just giving service and going to the higher dimension, whereas Rajasic is about enjoying life on earth.
So, and doing things on earth, having a big house, that these kind of things. Then the sign of Taurus represents our tone of speech. It represents what kind of food we like. Do we like savory food, or do we like sweet food, or sour or bitter? What taste do we have? And Taurus sign also represents kutumb, family's wealth, family jewelry. So that can be seen. Gemini is the sign ruled by your Mercury. Taurus is ruled by Venus. Libra is ruled by Venus. Aries is ruled by Mars. So जो Gemini sign है, it represents skills of hands, it represents writing, it represents social media, it represents your younger sibling, it represents short distance travel, it represents sports, gully cricket basically, not national level, gully cricket, badminton when we play it with our friends. National level पर कोई भी sports activity करना, that is seen from the Leo sign or the 5th house. When it comes to the sign of Libra, Libra represents marriage contract, business contract. It's the legal binding, and it also represents business. It does not represent jobs. Jobs are seen from Virgo sign. 7th house or the sign of Libra represents businesses. So if your moon is present in the Aries sign, we do see that here moon can be in Ashwini Nakshatra. And Ashwini is a nakshatra ruled by horses. So you are a person who is always running, towards the goal. You are always about that goal. You are quite focused as well. You can get distracted when health issues happen, and especially because your moon is in Ashwini, your mother and you can be the people who may have continuous ENT issues, eyes, nose, throat issue, may have cervical issue, may deal with sinusitis all the time, not all the time, or I should say continuously deal करते ही करते रहना इन चीज़ों से. कभी आई का इशू हो जाना, कभी नोज़ का, कभी साइनसाइटिस का, कभी थ्रोट का, कभी सर्वाइकल का, कुछ ना कुछ ये इश्यूज हो जाने. एंड यू आर ऑल्सो बिलीवर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन मोर देन इंग्लिश मेडिसिन्स. That is also there. You sleep because you want to take rest and want to run to achieve that goal. And if your moon is present in the Taurus sign, moon can be in Kritika Nakshatra here in Taurus, and definitely it shows that Kritika represents being critical. So you are quite critical about other people, about finances as well. Where is the money going? Okay, you invested in hair. Okay, you did this, you shopped this does not even worth 200 rupees and you paid 400 rupees, 500 rupees, my goodness. So these kind of things, being what's that term, savvy about money, that can be seen here. And with Kritika Nakshatra, you can be a person who can be a great cook as well. You can cook the best meal if you want to. You know how much salt, pepper should be added. You know the precision. You're quite good in cooking. Cooking can be a therapy. You're also a person who may edit really well, whether editing a picture, editing a video, editing a paragraph, a 3-page paragraph. You can even cut short it to 1 page, or if you are given 3-page letter, you can cut short in 1 page, and that will be a very strong letter. If your moon is present in the Gemini sign, we do see that your moon can be present in the nakshatra of Ardra. Ardra is a nakshatra which is a very chaotic nakshatra. Even though Gemini sign, people says that, oh, it's a sign of communication. Yes, it is a sign of communication, but you don't know what nakshatra is working there, which even do not want to communicate. Ardra people, that's why every Gemini do not want to communicate. If your moon is present in Ardra, we see that you like to be alone because you got rejected early in life by your classmates, by the people around you. They rejected you. So you also have this tendency to howl and scream on other people. The other people can be like, oh my goodness, you're howling and screaming? Are you an animal or a human? They can say that, and that can hurt one's feeling. Because the deity of Ardra is Rudra, and Rudra was sent in exile for thousands and thousands of years because he was rejected by the Deva, because he chopped off the head of Brahma. So he got punished for that, but he was ordered this. So he did what he was supposed to. Rudra is a very chaotic deity. Sometimes he chops the head of Brahma. Sometimes he pokes the eyes of some person. Sometimes he does something in the Yajna, Havna, sabotage things. So if you study the Vedas, you will know a lot about Rudra, and you will know a lot about Ardra Nakshatra. I here can just give you nitty-gritty details about it. Nitty-gritty और बहुत छोटी-छोटी बात है जो easy to understand है. But हर नक्षत्र इतना powerful होता है, इस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं, अगर योगा तारा डिग्री पर उनका प्लैनेट है उस नक्षत्र में, दे बिकम वेरी पावरफुल.
So that is there. And if your moon is present in the nakshatra of if your moon is present in the Libra sign, let's say in the nakshatra of Swati, you can be a person whose mind is always moving, because moon represents the mind. Your mind is always moving, one thing the other thing. कुछ पहले किसी चीज़ पर मन अटका हुआ था, फिर किसी चीज़ पर, फिर किसी चीज़ पर. So mind is always moving. You're also a person who should keep your feet fit, because the thing is Swati is about wind. It's always moving. हम humans कैसे move करते हैं? Through our feet. By our feet we move, right? तो यहाँ पर जो है, अगर feet पर कोई issue है, पैरों में कोई दर्द है, issue है, your life, you are going to see that your profession got downhill. You really need to keep your feet fit. That's important. Buying shoes every year, that will be great remedy for profession for Swati people. Just make sure that Saturn is not transiting your 6th house of your ईयरली हॉरोस्कोप और वर्षफल जिसको हम कहते हैं. अदरवाइज यू शुड नॉट बाय शूज़. सो ऑलवेज सी दिस. आई शुड नॉट हैव सेड दिस रेमेडी बिकॉज आई डोंट नो योर वर्षफल, आई डोंट नो दैट, बट yes, buying shoes is a great remedy for Swati people, and many Swati people are actually obsessed with shoes. If your moon is placed till 9th degree of the Libra, yes, you are kind of obsessed with shoes. You will have many shoes in your life, and you're also gonna always carry 3 shoes with you when you're going on vacation. One can be your sport shoes, one can be your normal slippers, flip flop, the third can be quite fancy. You will always carry 3 shoes. So let's get started. तो जो pile number 2 है उनका प्रेजेंट कैसा है, प्रेजेंट कार्मास क्या कर रहे हैं, क्या सिचुएशन चल रही है. All right, we have the 8 of cups, we have the king of swords and we have high priestess here. तो 8 of cups शो कर रहा है कि आप में से कुछ लोग जो हैं थोड़ा इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ वर्क, मे बी बिकॉज ऑफ सम पर्सन, बट few of you are quite depressed, want to go to therapy, want to just move on but are just not able to move on. चाहते हो मूव ऑन करना पर मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो. कोई ऐसा ड्रीम, कोई ऐसा गोल है जिसको आप पूरा करना चाहते तो थे पर वो हो नहीं पाया. कोई पर्सन के साथ रहना तो चाहते थे पर वो पर्सन कहीं चले गए. समहाउ ये सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हियर इज़ रिप्रेजेंटिंग कि आप जो हो थोड़ा आपको कट थ्रोट होने की ज़रूरत है, थोड़ा आपको प्रैक्टिकल सोचने की ज़रूरत है. जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इट्स लाइक कृतिका नक्षत्र. एज ऑफ टोल्ड यू, कृतिका इज क्रिटिकल. सो यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज द सिचुएशन and you have to think from the brain, not from the heart. That's also the guidance. Sometime the analytical logical skill will give you much better opportunities or much better decision making. Because यहाँ पर 8 of cups है जो कि एक मन में हलचल दिखा रहा है, मन उदास है, तो इंटुएशन जो है फिर आपको सही गाइड ना कर पाए. इसमें जो है बुद्धि जो है आपकी ठीक काम करेगी, आपकी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल जो आपको कहती है वो काम करना ठीक रहेगा. हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स निकालो, हर चीज़ के कि अगर मैं ये ऑप्शन चूज़ करता हूँ या करती हूँ तो इसका ये फ़ायदा और ये नुकसान है, और अगर मैं ये चीज़ करती हूँ इसको फॉलो तो इसके ये नुकसान है और ये फ़ायदा है. बिकॉज एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेस, राइट. तो यहाँ पर जो है वो हर कॉइन के 2 पहलू या 2 फेस देखने की यहाँ ज़रूरी है. और यहाँ पर जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है डेफिनेटली रिप्रेजेंट्स कि ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में यू हैव टू चूज़ वन थिंग. You have to choose one thing and you are just not able to choose that. You have many options but you are just not able to choose one. और यहाँ पर जो है मन तो थोड़ा यहाँ उदास नज़र आ रहा है, उसको थोड़ा समझाने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा हील करने की ज़रूरत है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू क्रिया योगा और थ्रू सम योगा इटसेल्फ. चाहे वो मेडिटेशन है, योगा, उसको थोड़ा हील करने की ज़रूरत है क्योंकि मन उदास है यहाँ पर और डिसीजन लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर प्रोज और कॉन्स देखकर डिसीजन लेना है. क्या सिचुएशंस जो है पाइल नंबर 2 की लाइफ में चल रही हैं, पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या सिचुएशंस चल रही हैं. All right, we have the 9 of cups, we have 2 of wands, we have 4 of wands as well. कुछ लोग आप में से मैरिज को लेकर भी थोड़ा परेशान नज़र आ रहे हो. यू वॉन्ट टू गेट मैरिड बट यू आर जस्ट नॉट एबल टू फाइंड द राइट पार्टनर. ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है. कुछ लोग आप में से मैट्रिमोनियल साइट्स पर जा रहे हो, जो ऑनलाइन इंटरनेट रिलेटेड जो आजकल मैच
बन रहे हैं, फिक्सिंग हो रही है, नॉट मैच फिक्सिंग, मैरिज फिक्सिंग और समथिंग, जो डेटिंग ऐप्स है, ये सब कुछ इन चीज़ों पर जो है आप ध्यान दे रहे हो, बट स्टिल कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है। 9 ऑफ कप्स हियर इज़ रिप्रेजेंटिंग कि अब जो है आपको बैठ जाना चाहिए एक बार, जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, साक्षी दृष्टा होके बस बैठ जाओ, बिकॉज आप कर कुछ नहीं सकते हो। परेशान होगे तो आप क्या क्रिएट कर रहे हो, परेशानी की वाइब्रेशन अपने अराउंड क्रिएट कर रहे हो, जो कि दूसरों को बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि जो पहली परेशान है पर्सन, वो आपके परेशानी वाले ऑरा में आएगा तो वो तो और डाउन चला जाएगा और फिर सोल्यूशन तो कोई निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर जो है अभी आपके हाथ में कुछ चीज़ें नहीं है, तो लेट इट बी, गो विद द फ्लो देन, बिकॉज आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन शायद अभी नहीं है, तो इट इज़ बेटर कि एक बार बैठ जाओ। जब सिचुएशन नहीं अकॉर्डिंग है, आप एफर्ट कुछ कर नहीं सकते उसको ठीक करने के लिए, लेट इट बी। और यहाँ पर जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स जो मैरिज की, या फिर बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ रिलीजियस सेरेमनी एज वेल। तो बिजनेस रिलेटेड भी हो सकता है, बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। बिजनेस रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे और वो आपको नहीं मिली, सो डू नॉट वरी, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। आपके टर्म एंड कंडीशंस पर कोई पर्सन काम करना चाहेगा ही चाहेगा। और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स जो मैरिज का कार्ड है, एक रिलीजियस सेक्रामेंट का कार्ड है, 9th हाउस ऑफ धार्मा का भी कार्ड है, बिकॉज 9th हाउस रिप्रेजेंट्स रिलीजियस सेरेमनीज एंड मैरिज इन इंडिया इज कंसिडर्ड ए रिलीजियस सेरेमनी। तो यहाँ पर इसके लिए आपका एक अच्छा रिश्ता 4 to 5 months में मिल जाएगा, यहाँ पर 4 to 5 months। बट अगर आप सोचो कि अभी हो जाए, ऐसा नहीं यहाँ पर पॉसिबल। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो किसी अच्छे रिश्ते की, कोई एक मे बी हॉरोस्कोप पहले मैच नहीं कर रहे थे किसी पर्सन से, मे बी दैट पर्सन वॉज अ मांगलिक और समथिंग और द अदर, ऑल्दो आई डू नॉट रियली बिलीव इन मांगलिक दोषा, बिकॉज it's simply a personality trait. It simply shows that the person is very warm-hearted, and yes, it does show that after marriage the person's spouse who is Manglik, उस person के spouse जो हैं और उस पर्सन के इन-लॉज जो होंगे थोड़ा हेल्थ इशू से डील करेंगे। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द पर्सन, इट्स बिकॉज ऑफ देयर ओन इन-लॉज एंड द स्पाउसेज ओन कार्मास। इट्स जस्ट कि मांगलिक जो पर्सन उसके चार्ट से हमें पता लग जाता है कि हाँ, आफ्टर मैरिज इट्स जस्ट एन इंडिकेशन इन देयर चार्ट दैट देयर स्पाउस एंड देयर इन-लॉज विल गेट हेल्थ इशूज, बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द मांगलिक पर्सन। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करने की, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मैरिज से रिलेटेड आपके पास अच्छी न्यूज़ आ जाएगी, डू नॉट वरी। बिजनेस रिलेटेड भी अच्छी न्यूज़ आ जाएगी, बट राइट नाउ यू रियली नीड टू काम डाउन। और चीज़ें अगर अकॉर्डिंग नहीं है, सो जस्ट काम डाउन, दैट इज़ समथिंग विच वी कैन डू। अदरवाइज चीज़ें और भी उलझ सकती है यहाँ पर। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर हमें टैरो दे, कोई सोल्यूशन, कोई इन्फॉर्मेशन हमें टैरो दे फॉर पाइल नंबर 2। ऑल राइट, वी हैव द हॉस्टिलिटीज़, वी हैव कॉर्नोकोपिया एंड वी हैव द मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो यहाँ पर फॉर मैरिज आ ही गया यहाँ पे, तो कि कोई अच्छा रिश्ता आपको मिल जाएगा, डू नॉट वरी। और यहाँ पर जो है, यू कैन बी 26 years old, और दिस पर्सन, जो भी ये पर्सन है, ये 26 या 36 years old हो सकते हैं। और यहाँ हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। हॉस्टिलिटीज़ भी यहाँ पर शो करिए कि मुश्किलें तो हैं। वी कैन नॉट जस्ट से दैट ओ योर इशूज़ ऑफ योर लाइफ विल गेट रिजॉल्व, और कोई मुश्किलें आएंगी ही नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है इन रियल लाइफ। वॉट इज़ कि यहाँ पर जो है, बिकॉज वी हैव द कॉर्नोकोपिया, वी नो कि जो भी इशू होंगे, जो भी आपके पास ये जो परेशानियाँ आएंगी, आप उनसे निकल जाओगे, पर परेशानियाँ आएंगी तो आएंगी वो। पर यहाँ पर एक पॉजिटिव कार्ड भी है जो कि कॉर्नोकोपिया डेफिनेटली शोज दैट आफ्टर गोइंग थ्रू दिस एक्सपीरियंस, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस हॉस्टिलिटीज़ और दिस कॉम्पिटिशन ऑब्स्टिकल, यू आर गोना बिकम क्वाइट स्ट्रॉन्गर and you're going to prove other people that you're also capable. So यहाँ पर जो है अच्छी चीज़ें आएंगी, बट शुरू में डिफ़िकल्टीज़ हैं, नो डाउट देयर इज़। बट जहाँ पर आपको पता है कि मैं एफ़र्ट करके, मेरे एफ़र्ट का कोई एक निकलने नहीं वाला कोई रिज़ल्ट, तो लेट मी जस्ट सिट एंड सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन। साक्षी दृष्टा बनकर देखना भी ज़रूरी है। हर टाइम आपके या मेरे एफ़र्ट्स जो हैं काम में नहीं आते, कई बार आराम से बैठकर देखना भी पड़ जाता है, हमारे हाथ में वो चीज़ें होती ही नहीं हैं।
तो यहाँ पर थोड़ा आराम से अब बैठ जाने की ज़रूरत है। 3-4 मंथ्स के बाद यहाँ पर मैरिज रिलेटेड गुड न्यूज़ आ रही है। एंड व्हेन इट कम्स टू योर बिजनेस डील्स एंड बिजनेस पार्टनरशिप, तो यहाँ पर भी जो है ये लगा लो 6 मंथ्स के बाद कोई अच्छी डील या कोई अच्छी पार्टनरशिप नज़र आ रही है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। तो ये चीज़ है। लेट मी जस्ट पुल guidance card for you. I should pull guidance card from this traveler oracle cards, sacred traveler oracle cards. तो यहाँ पर पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? So we have the infinite abundance and we have fogged in. Go slow, take time. तो जो अभी मैंने कहा कि बैठ जाओ थोड़ा सा, जो है आप रेस्ट करो, देखो क्या हो रहा है। जब सिचुएशन फॉग्ड है यानी कि आपको आगे कुछ दिख नहीं रहा है, अगर दिख रहा है तो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो यहाँ पर स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो, बैठ जाओ, देखो क्या हो रहा है। इवन इफ़ यू फील कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जस्टिस सर्व नहीं हो रहा है, ये तो लाइफ इज़ सो अनफेयर, अगर आपको ऐसा भी लग रहा है पर आप कर कुछ नहीं सकते, तो एक बार बैठ जाओ, कुछ नहीं कर सकते, लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपन्स, गो विद द फ्लो। और यहाँ पर टेक योर टाइम, गो स्लो, टेक रेस्ट। इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर नहीं डालना है, प्रेशर कुकर नहीं है। यहाँ पर इनफाइनाइट अबंडेंस भी है। अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ, इट इज़ पोरिंग, यू जस्ट नीड टू फील इट। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ना प्यार ही नहीं महसूस होता है अपने स्पाउस से, या प्यार ही नहीं महसूस होता अपने पेरेंट्स से कईयों को शिकायतें होती है। पेरेंट कहते हैं नहीं मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी इसको मेरा प्यार नज़र नहीं आता है, महसूस नहीं होता है। यहाँ पर अपने में कमी है, दूसरे में नहीं है। हमें अपने ऊपर पहले उंगली करनी चाहिए, फिर जो है दूसरे के ऊपर तो फिर करनी बनती ही नहीं, क्योंकि हमें अपने में ही बहुत सारी कमियाँ निकलनी और यू कैन से दिखनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर abundance is pouring in your life, you just need to feel it. At times situations cannot be in our hands, what we need to do is to be साक्षी दृष्टा and just see it. डिटैच होकर उस चीज़ को देखना। जो ड्रामा यहाँ पर प्ले हो रहा है हमारे अर्थ पर, हम आत्माएं इस बॉडी में आकर जो ये ड्रामा प्ले कर रही हैं, देखो उसको, क्योंकि कर नहीं सकते यहाँ कुछ। बट येस, आफ्टर 3-4 मंथ्स यहाँ पर मैरिज के लिए एक अच्छा रिश्ता भी आता हुआ नज़र आ रहा है। 5-6 मंथ्स के बाद आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर आएगी। ऑलराइट डियर, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 2। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। Hello pile number 3, so this is your reading. You chose the Jade card. Take action number 32. Your moon is placed in the signs like Virgo, Scorpio, Capricorn or Aquarius. These are Thamasic signs because Virgo deals with obstacle, competition, debts, diseases, hurdles, and Virgo sign is really very important because without these things हम कुछ सीख ही ना पाते लाइफ में और हमें अपनी लाइफ की वैल्यू ही ना होती। अगर हमारी लाइफ में सब बहुत अच्छा चल रहा है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं, जैसे ही बुरा वक्त आता है तो हम वैल्यू करने लगते हैं कि अरे पास्ट में मैंने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, मैं वही जो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है वो अब जो है फ्यूचर में चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए एफर्ट करता हूँ। योर हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एंड मेक्स यू रियलाइज कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कितना ज़्यादा रिजिलियंट हूँ, मेरे अंदर कितनी पावर ऑफ रिजिलियंस है। तो Virgo gives us testing opportunities, and Virgo do represents jobs. It represents doing repetitive things, being in routine. It represents all the boring things which we do in our routine, which we have to do in a repetitive way. रोज़ नहाना धोना पड़ता है, रोज़ ब्रश करना पड़ता है, रोज़ खाना खाना पड़ता है, रोज़ बेड बनाना पड़ता है। ये सब चीज़ें जो है ये वर्गो रिप्रेजेंट करता है। देन साइन ऑफ स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट्स एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म। इट रिप्रेजेंट्स तांत्रा, वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक। इट्स ऑल्सो द साइन विच रिप्रेजेंट्स बेड प्लेजर, लाइफ आफ्टर मैरिज, इन लॉस। देन Capricorn sign represents your इमेज इन सोसाइटी, फेम, रेपुटेशन, रिकॉग्निशन। आपका प्रोफेशन कैसा है, किन चीज़ों से आप अपने प्रोफेशन में डील करते हो, आपके बॉसेस कैसे हैं। And 11th house or the sign of Aquarius also represents your bosses, represents your gains from the authorities, wealth which you gain from your profession. Aquarius sign represents wildlife as well, whereas 6th house or the sign of Virgo represents domesticated pets. And the Aquarius sign or the 11th house also represents your elder sibling.
सो दैट्स ऑल्सो देयर. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो भी ये साइन ऑफ एक्वेरियस और 11th हाउस रूल करता है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. ओ यस, वन मोर थिंग. इफ योर मून इज प्रेजेंट इन द वर्गो साइन, मून कैन बी उत्तरा, फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा. सो लेट्स से योर मून इज प्रेजेंट इन दी हास्ता नक्षत्र. हास्ता इज अ नक्षत्र, जैसे हास्ता हाथ, नाम में हाथ हास्ता है, राइट. स्किल्स ऑफ हैंड्स कैन बी सीन. टेक केयर ऑफ योर हैंड्स. हैंड्स बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. इफ़ योर हैंड्स मतलब आपके हाथों पे कट लग गए हैं, आप ये चीज़ देखोगे कि आपके डायरेक्टली उस चीज़ ने प्रोफेशन पर जो है एक तरह से इम्पैक्ट डाला है. ऑलवेज कीप योर हैंड्स ब्यूटिफुल. ऑलवेज कीप योर हैंड्स सॉफ्ट एंड in a healthy state. You should also get hand massage whenever things are not going well in your profession, well in life. Take care of your hands. See how your hands are. And Hasta represents skills of hands, painting, sculpting, and if you're a guy watching this reading and you have your moon in Hasta, you can be good in carpentry. You may not really call urban clap people to hang a picture on a wall. You know how to do that. And Hasta also are the people who are very witty, who are you can have a very hard life early age. You will deal with many issues if your moon is in Hasta. But with those issues later in life, you can become a very witty person and you can make fun of other people's or small little issues which happens in our life. For other people, you can be insensitive because you are making fun of their issues. But उनके जो issues होंगे, उनकी जो परेशानियाँ होंगी, वो आपकी परेशानियों से मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि आप जिन परेशानियों से निकले हो, उन परेशानियों जैसी या उन मुश्किलों जैसी उन दूसरे लोगों की मुश्किलें नहीं है. उन आपकी जो मुश्किलें थी, आपकी जो हर्डल्स थी, आपने जो सहा, उससे कम जो है उनको हर्डल्स मिल रहे हैं, उनसे कम जो है उनको उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है. आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी, इस वजह से उनकी जो प्रॉब्लम है वो आपको ज़्यादा लगती ही नहीं है. वो या जो आगे चल के जो दूसरी जनरेशन्स, तीसरी जनरेशन्स की प्रॉब्लम है, वो आपको प्रॉब्लम लगती ही नहीं है. सो यू जस्ट मेक फन आउट ऑफ इट और यू जस्ट से लाइक, तो क्या हो गया. वो चलो दिल्ली में जो डायलॉग है वो कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, क्योंकि उसने उससे भी बड़ी बातें देखी हैं, तभी वो कह रहा है कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी. तो दिस हास्ता पीपल, आई मीन इफ़ योर मून इज़ इन हास्ता, यू कैन बी अ पर्सन who is very witty and who has a very good humor as well. Many good comedians or very good comedians only comes from Hasta Nakshatra. Because if you see comedians life, उन्होंने बहुत struggle और बहुत सारी चीज़ें देखी होती है, बहुत ups and downs देखी होती है और struggles देखी होती है, और वो comedians बनते हैं. If you see comedians chart, उनका chart बहुत gloomy है, इतना अच्छा नहीं है, और फिर भी वो दूसरों को हंसाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी वो अगर दूसरे लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम से कंपेयर करें तो इतनी नहीं है, उनको उसमें मजाक ही सूझता है. बट ऑफ कोर्स वी नीड टू बी एम्पैथेटिक. दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग, a virtue. You should be empathetic, but yes, you are a witty person who makes jokes and fun. Yeah, that's there. You are a person who can even become a good comedian. You are very witty. So, but be empathetic also. If your moon is placed in the sign of Scorpio, your moon can be placed in Anuradha, Jyeshtha or Vishaka. So if your moon is placed in Anuradha Nakshatra, there can be two extremes here with Anuradha, because either you can have very devoted friendship. Friends can be devoted to you, you are devoted to your friends. एक दूसरे के लिए कुछ भी करेंगे. And other extreme is that you get friends who are very toxic. So Anuradha person gives more importance. If your moon is in Anuradha, you and your mother give more importance to friends and less importance to blood relations. You can have great friendship or you can have very nasty friendship. इन दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पर होती है एक्सट्रीम्स में जाके. बिकॉज द डिटी ऑफ अनुराधा इज मित्रा. मित्रा मीन्स फ्रेंड्स. एंड वी डू सी दैट इफ़ योर मून इज प्रेजेंट इन द नक्षत्रा, or I should say the sign of Capricorn, moon can be in Uttara, Ashada or Sravan or Dhanishta. If your moon is present in Sravan, if your moon is present in Dhanishta Nakshatra, let's say, moon here becomes very much interested into music instrument. Especially you can have a music instrument in your house, whether it's flute, drum, harmonium, sitar, guitar, something. You will have this music instrument in your house if your moon is placed in Dhanishta Nakshatra. You're also gonna learn
some music instrument in your life for sure, that's also there. And you also know the rhythm of life. You can be a very good pulse reader. आपके घर में कोई ना कोई जो है एक गलत चीज़ रखी होगी या कोई गलत कलर होगा आपके किसी डायरेक्शन में, या सिंक की साइड, किचन की साइड कुछ डिफरेंट हो सकती है जो कि वास्तु से गलत है, वास्तु अकॉर्डिंग गलत है, तो आप उस चीज़ को पहचान के ठीक कर लोगे, ये मेरे कहने का मतलब है। इफ़ यू हैव मून इन धनिष्ठा नक्षत्र, सो इफ़ योर मून इज प्रेजेंट इन द एक्वेरियस साइन इन द नक्षत्र ऑफ सतभिषाक, सतभिषाक इज वेरी एक्सेंट्रिक नक्षत्र, वेरी एक्सेंट्रिक बिकॉज इट्स अ राहु रूल नक्षत्र. You can be a person who likes to eat exotic food, you like to make friends who are not from your caste, not from your culture. You can even end up getting married to a person who is not from your caste, not from your culture, especially if moon is the dharakarka planet which is signifying your spouse. लोएस्ट डिग्री जो होता है आपका प्लैनेट आपके चार्ट में, दैट सिग्निफाइज द स्पाउस, धाराकार. सो you are a person who can be known as the weird one in the family. You have very different interests, very different taste in everything. Your family and you do not really match. Your family can say that you are the outcast of the family, or you have a very different mindset. That can be seen here. And yeah, let's just get started. जो पाइल नंबर 3 है वो अपनी लाइफ में किन चीज़ों से जो है निकल रहे हैं, क्या सिचुएशंस हैं, प्रेजेंट कार्मास क्या है पाइल नंबर 3 के. All right, we have the King of Pentacles, we also have the Devil and we have the Tower card. Major changes से आप गुजर रहे हो इस टाइम पर. जो ये King of Pentacles है डेफिनेटली शो कर रही है कि you want that stability in your life, you really want that. But एक और चीज़ है, द टावर कार्ड इज़ रिप्रेजेंटिंग या तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं, इस वजह से सेविंग हो नहीं पाती है. यहाँ पर डेविल कार्ड भी है जो कि एक तरह से राहु है. राहु इन द in the Vedic times was considered a bad planet, a malefic planet, and it is still considered a malefic planet. But nowadays without Rahu we cannot imagine our life, because Rahu is technology. IT companies ही ना होती अगर राहु ना होता तो. Rahu is very important planet. IT, software, and anything related to technology, this light, the camera, everything is Rahu and Venus. So we do see that there is that thing कि you want to enjoy the materialistic life, you want that. Alright, it's fine, I'm not saying that this is right or this is wrong, but you want to have that materialistic life, so you always are like, okay, I want more money, how can I get more money? Okay, I have to do this, alright, let me just do it. So Rahu is also a motivational factor for you. Many people who are going through the UPSC examinations, and even if they fail, then also they say that no, we are going to crack that UPSC, we are going to get we are going to become the IS and IPS officers. Most of the time I see that Rahu is well placed in their chart, because Rahu wants you to expand more than you can. It wants you to expand more than your ability. So here the thing is that motivation is there to expand more, to do more hard work, to get more money. And the thing is, you may not really get satisfied easily as well, because Rahu is just the head, it's not the body. So whatever Rahu eats, it's not gonna be in the body. तो जब body में वो लगा ही नहीं तो वो satisfaction, वो fullness आएगी ही नहीं. It will eat and again eat more. So we do see that you are not going to get satisfied unless you want more. And when you want more, you do your effort. आप पूरा hard work अपना करते हो. और यहाँ पर the Tower card represents a change, a sudden change which is coming in your life. So let's just see, clarity लेते हैं टैरो से कि ये जो टावर कार्ड है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन. ये जो चेंज, सडन चेंज आ रहा है पाइल नंबर 3 की लाइफ में प्रेजेंट में, ये पॉजिटिव चेंज है, किस बारे में चेंज है, नेगेटिव चेंज है, क्या चेंज है. ऑलराइट, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वी हैव द डेथ कार्ड हेयर एंड वी हैव द मून हेयर. तो यहाँ पर जो है अगेन जो डेथ कार्ड है, इट रिप्रेजेंट्स दैट चेंज, डेथ एंड रीबर्थ, 8th हाउस, अकल्ट मिस्टिसिज्म, थिंग्स विच आर हैपनिंग. इट कैन हैपन. आप अपनी लाइफ न्यू सिरे से शुरू करो, एक नई शुरुआत करो. यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून भी एक चीज़ दिखा रही है कि एक पुराना साइकिल आपकी लाइफ में ख़त्म हो गया, एक नया साइकिल शुरू हो गया. मून कार्ड भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में अगेन एक पुराना साइकिल ख़त्म हो गया, नया शुरू होने वाला है. मून ऑल्सो इज ऑलवेज वैक्सिंग एंड वेनिंग. इट कैन हैपन दैट इन योर लाइफ यू वॉन्ट दैट सक्सेस, दैट फाइनेंशियल अबंडेंस, बट वॉट हैपन्स इज मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स करेंसी. Okay, Venus is currency and liquid money, but moon is the karka of money as well.
जुपिटर इज़ ऑल्सो वेल्थ बट बेसिकली गोल्ड, बट जो हमारा मनी है दैट इज़ ऑल्सो मून. सो हेयर वी डू सी दैट जो मून है हमेशा वैक्स और वेन करता है, और हाई टाइड लो टाइड होती है मून की वजह से. सो यू विल गेट द गेन, यू विल गेट द मनी, यू विल गेट दैट रिस्पेक्ट इन सोसाइटी एज वेल, बट इट स्पेशली मनी में कम्स इन वेव्स. मनी में कम इन वेव, मीनिंग कभी मनी ज़्यादा आ गया, कभी मनी कम आया. सो ये होता कब है? जब फ्लक्चुएशन होती है आपके प्रोफेशन में. मैनी ऑफ यू कैन गो इन बिजनेस एंड दैट बिजनेस इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग, इट्स नेवर रियली स्टेबल. सो दैट्स देयर. बट जो भी ये चेंज आ रहा है ये बेटरमेंट के लिए ही ये चेंज है. और यहाँ ये जो भी चेंज है ये आपको मूड स्विंग्स भी काफ़ी ज़्यादा देता है, बिकॉज मून रिप्रेजेंट्स आवर माइंड, मून रिप्रेजेंट्स आवर इमोशंस. सो हेयर there are changes coming in your emotions as well. Continuously, कभी खुश कभी गुस्सा, कभी उदास कभी बहुत ज़्यादा खुश. So there is that always that change in the mood as well, और change in mind as well, change in goal as well. ऐसा हो सकता है early in life you wanted to become something, then later you're like I want to do this thing, and then again you changed your job, changed your profession. Many people do that, especially because this is a Thamasic pile. तो यहाँ पर जो Capricorn sign है, if your moon is present in Capricorn, especially in Sravan Nakshatra, you are going to change your job thrice. You're going to change your goal thrice in your life. और जो तीसरा गोल हो गया, तीसरी जॉब होगी, तीसरा बिजनेस हो गया, या फिर तीसरी सिटी होगी, 3 बार भी आप जगह चेंज कर सकते हो, बिकॉज दिस नक्षत्र इज रिलेटेड टू वामना अवतार ऑफ विष्णु, विच इज़ अबाउट 3 steps. सो यू कैन चेंज योर प्लेस ऑफ लिविंग. और यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड भी आया हुआ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रैवल. सो इट कैन हैपन दैट यू ट्रैवल टू 3 different places in your life, and the third place you make your home, make your residence. That place give you that satisfaction, and that place is the place where you feel alive. तो कुछ लोग आप में से रीलोकेट भी यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो. तो ये भी एक सडन चेंज है, या ये हम कई बार सोच लेते हैं येस वी वांट टू रीलोकेट, और अब हमें जो है शिफ्ट करना है, बट एक जो मेंटली शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो जो रियलाइजेशन है वो यहाँ पर देर से होती हुई नज़र आ रही है. तो ये सडन चेंज है, तो ये सडन शिफ्ट है. यहाँ पर टेरो की तरफ से कुछ और इन्फॉर्मेशन या कुछ गाइडेंस पाइल नंबर 3 के लिए. All right, we have the appreciation, we have the strategy, we also have the temple path. So we do see यहाँ पर strategize करके ही चीज़ें करनी है, especially because we have Uttarashada nakshatra in the Capricorn sign. If your moon is in Capricorn sign in Uttarashada, we definitely see that you should always strategize thing. इतना ज़्यादा spontaneous होना आपके लिए ठीक नहीं है. You should always strategize, and you are very good in strategizing as well. यहाँ पर जो अप्रिसिएशन कार्ड भी है, जैसा मैंने कहा, बिकॉज वी हैव द डेविल कार्ड, और इट्स ऑल्सो अबाउट द ग्रीड, इट्स ऑल्सो अबाउट आई वॉन्ट मोर मोर मोर, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, आई वॉन्ट दिस. एक तरह से अच्छी बात भी है, बुरी बात भी. अच्छी बात इसलिए बिकॉज यू आर गोना क्लाइम द कॉर्पोरेट लैडर एंड यू आर गोना हैव ए हाई स्टेटस इन द सोसाइटी. एंड बैड इसलिए बिकॉज ग्रीड इज़ नॉट अ वर्च्यू, इट्स एन इविल. Spiritually it's not correct. So here you should always appreciate what you have. You should always appreciate what you have. हर बार जो है हर चीज़ के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ है उसको भी इंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, स्पेशली इन प्रेजेंट. यहाँ पर टेम्पल पाथ भी है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है. इट कैन हैपन, माइंड जो है वो फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा कर ही रहा है माइंड. तो फ्लक्चुएट यहाँ पर वो चीज़ नज़र आ रही है, बार बार डिसीजन बदल रहे हैं और चीज़ें नई नई सोची जा रही हैं. बट टेम्पल पार्ट डेफिनेटली शोज द 9th house ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन. सो गोइंग टू स्पिरिचुअल प्लेसेस एंड ज्वाइनिंग सम सेमिनार्स, स्पिरिचुअल सेमिनार्स विल एक्चुअली हेल्प योर मेंटल स्टेबिलिटी. तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. कुछ और गाइडेंस भी यहाँ पर ले लेते हैं टेरो से. पाइल नंबर 3 के लिए कुछ और गाइडेंस or information. So we have the in the flow, everything is smooth and sailing, reaching your destination, your light is shining brightly. So यहाँ पर जो है आप जो कुछ लोग आप में से रीलोकेट करते हो तो ज़रूर नज़र आ रहे हो. और यहाँ पर जो है everything is smooth sailing. even if आपकी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर
हर्डल्स दिख रही हैं, मुश्किलें दिख रही है, ऑब्स्टिकल्स दिख रही है, इट्स काइंड ऑफ ए अफर्मेशन फॉर यू. यू शुड डेफिनेटली डू दिस एवरी डे दैट एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग. इस चीज़ को बार बार अगर मन में दोहराना शुरू कर दोगे, ये थॉट क्रिएट करना शुरू कर दोगे, क्योंकि थॉट एक एनर्जी है, पावर है, तो आपके जो अराउंड सिचुएशन है, ये वाली पावर, ये वाला जो सिचुएशन है, इसको चेंज करने की पावर रखती है. सो योर थॉट्स रियली मैटर, योर एक्शंस रियली मैटर, बट वो एक्शन आर द रिएक्शन ऑफ योर थॉट. सो वट एवर यू आर क्रिएटिंग, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. थॉट, आप सोच क्या रहे हो, उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जितना कम सोचोगे उतनी थॉट में पावर होगी, जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी थॉट में पावर कम होगी. तभी तो कुछ लोग जो है मैनिफेस्टेशन करते हैं और उनको वो चीज़ मिल जाती है, क्योंकि उनकी पावर, जो उनके जो थॉट्स हैं, या तो वो बहुत कम चलते हैं उनके थॉट्स, और अगर चलते भी है बहुत सारे थॉट, तो एक ही थॉट है वो, बार बार वही चीज़ सोचना, और वो फिर मैनिफेस्टेशन करके वो चीज़ पा लेते हैं. और फिर कहते हैं कि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन देखो कितनी. और कुछ लोग कहेंगे कि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है ही नहीं, क्योंकि उनके थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं और वेस्ट थॉट्स ज़्यादा है. वेयरएज जिनकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होती हैं, उनके थॉट्स कम हैं, या फिर जो वो थॉट्स करते हैं, बहुत सारे थॉट्स करते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में होते हैं. तो ये दो तरीके से भी आप जो हो अपनी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, अपने थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो. Alright dear, so this was the reading for you, pile number 3, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy.